ये होता ये है कि सपोज आई एम नॉट सेइंग दैट यू ऑल आर नॉट प्रिपेयरिंग दोज हु हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स, ओके। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिस हो गया, पढ़ा है उस समय याद नहीं आया और गलती से टिक हो गया। तो आपको यही करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस। अब एक ही चीज है जो आपको अलग अलग पेज में क्या अलग अलग तरीके से पढ़ाई जा रही है। अब मैंने आपको जब डीपीपी दे दी तो फिर डीपीपी के दूसरे दिन हम लोगों का क्या होता है, डिस्कशन होता है। उस पर मैं डिस्कशन कराता हूँ आप लोगों की, है ना, क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। तो यस सर। वो डीपीपी से ही बेस्ड मोर और लेस क्वेश्चंस आपके होते हैं, है ना। तो डीपीपी वहाँ पे भी किया, फिर मैंने भी पूछ लिया, फिर रिवीजन हो गया। ओके, फिर आपने देखा कि जब कोई फोर्टनाइटली टेस्ट होता है तो भी वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपने देखा जब फेस टेस्ट होता है तो भी वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन दिस वे व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, ओके, एंड यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ बेटर एंड बेटर, ओके। यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ डे बाय डे। तो आपको ऐसे ही करते रहना है। अब फेज वन का जो है कि क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिस्कशन, ओके। सो व्हाट वी विल डू टुडे, as we forgot in previous class, so we will do a recap of phase one questions, okay, ताकि जिन बच्चों का phase one के क्वेश्चन में कोई यस प्रॉब्लम सर। हो, है ना, वो क्या करें, उसको देन एंड देयर सॉर्ट आउट कर लें। Why did the Balkan even? Someone has asked some question. Okay, let me look at that. Sir, except romanticism, why did the Balkan region become exclusive? What do you mean by this, Vaibhav Kathy? What do you mean by this? Sir, except romanticism, why did the Balkan region become exclusive? Vaibhav Kathy, आपको ये क्वेश्चन कहाँ मिला and what do you want to know about it? Please explain. Vaibhav, सर हाँ बताइए, what is your doubt? क्या सर डाउट? सर बुक में लाइन है instead of the Your voice is not clear. क्या कहना है? Be louder. Sir, I am saying that the spread, sir, book में line है the spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire made this region very explosive. तो सर रोमांटिसिज्म के अलावा इसमें कोई और रीजन भी है कि बल्कन जो रीजन था इतना एक्सप्लोसिव हो गया था? Yes, there are other reasons as well. Balkan region में romanticism तो एक था ही, romanticism because they want to secure their traditional rights and cultures. Okay, they want to become a nation state, separate nation state. That's Yes, why sir. means they were fighting against the Ottoman Empire. Apart from that, there was a sense of expansion of territory. Okay, they had the sense to expand their territory. Okay, so expansion of territory was also there in their mind. That was also the reason for fight. As well as there was interest of different great power rivalries in order to make colonies. Okay, so that was also a reason. Okay, समझ में आ रहा है? And why Yes, yes, great power rivalries were there? Great power rivalries were there due to expansion of their territory as well as for their trade purpose. Okay, the ultimate goal is trade, more colonies, more trade, more prosperity. समझ में आ रहा है? This is a concept. yes, sir, yes, sir. तो यही है। तो let me do a revision of phase one. Okay, तो phase one I think you all are aware of questions, है ना? अगर नहीं है तो एक बार आप open कर दीजिए। I will repeat question and it will be up to you to answer those question, है ना? तो are you ready? यस सर। आप सभी लोग ready हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay. So let me check where is the question right now. Kaiser radical. Okay. तो अब आपस में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? सर हु पेंटेड द फर्स्ट भारत माता इमेज? अभिनंदन टैगोर, करेक्ट है। आर्यन जैन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज द रॉन्ग आंसर। पेंटिंग की बात हुई है। आदित्य वर्मा, व्हाई यू हैव आंसर्ड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? आदित्य, Sir, it was written in the book. क्या पेंटिंग Yes. वाज डन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और द इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड? इमेज बनाना और पेंटिंग करना दो अलग बातें होती हैं आदित्य।
Okay, sir. Okay. Sorry for the wrong answer. Okay, okay. Now let's move to page one paper. Okay. तो पहला क्वेश्चन था the Himalayan yew Taxus valucina is a medical plant found in various parts of Sir, Arunachal Pradesh and Sir, Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh. Yes, it's Arunachal Pradesh and Himachal Pradesh. Very good. फिर उसके बाद BMI formula is Sir, weight in kg upon height in meters square. height in meters. height weight in kg upon height in meter का whole square. ठीक है. There are 22 scheduled languages in which schedule of the Indian Constitution we find this. Eight schedule. Very good. President rule is defined under dash of the Indian Constitution. Article 356. Article 360 article. 56. What is the basic idea behind decentralization? मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ. There are large number of problems and issues which are best settled at local level to inculcate a habit of democratic participation. People have better knowledge of problems in their locality. I already had all of them. Okay, 73rd Constitutional Amendment Act 1993 is related to Panchayat. Panchayat. Yes. Very good. Now the question is from match the following. So problem faced by farmers and some possible measures. जैसे unirrigated land. So unirrigated land, construction of canal by the government. है ना? Very good. Construction of canal by the government. With low prices of crops. Cooperative marketing. है ना? Cooperative marketing. तो इसमें first option जो होगा, ठीक है, वो correct होगा. ठीक है, the first one will be the correct answer. Planning Commission has been replaced by Niti Aayog. Okay, which of the following is our famous feature of MG Narega? It gives guaranteed 100 days of employment. If the government fails it's in its duty to provide employment within 15 days, then it will give unemployment allowances. This act mandate a 33% participation of women. All of these. All of these. Very good. In rural India, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural labor, sharecroppers, and artisan small and marginal farmers. All of these. All of these. All of these. Very good. French Indochina was formed in the year 1887. very good. 1887. Thailand was called as earlier. Siam. Siam. To whom Metternich described as the most dangerous enemy of our society. Very good, very good. Giuseppe Mazzini. In which country language played an important role in development? Poland. On 18th of January 1871, who became the new German emperor of German Empire? Very good. Rehan Dam is also known as Govind Vallabh Pant. In hill and mountainous region, people build divergent channel like the Golden Coast, Western Himalaya. Mein. To whom the French people called Mad Bonge? Yun Fuso. Option D, Yun Fuso. Who is the author of Apocalypse Now, 1979? John Ford Coppola. Correct. Civil Code of 1804, usually known as In 1834, a custom union or zollverein was formed at the initiative of Treaty of Vienna is also known as Treaty of General Treaty of General Alliance. Very good. In which city rooftop rainwater harvesting is common practice, yet the city faces acute shortage of water? Shillong. India has got the right to mine dash from the bed of the Manganese. Very good. The leader at the Rio de Janeiro signed the declaration on global climatic change and biological diversity. Correct कर लो किसी ने all of the above कहा है. It's global climatic change and biological diversity. फिर इसके बाद current fallow land refers to the land uncultivated for 1 or less than 1 year. One agricultural year. ठीक है. Which among the following state has low infant mortality rate? Kerala. Human Development Report is published by UNDP. UNDP. What is the rank of India
2009 in SDI. 129. 129. 129. Very good. Groundwater overviews is particularly found in the region of All the Punjab and Western UP, Punjab Hard Rock and Lake. Western UP, Haryana. Wait, Punjab and Western UP, Hard Rock Plateau areas of Central and South India, some coastal areas. D, all of them. All of the above. All of them. Apart from income, what else people can see? Equal treatment, freedom, security, all of them. All of the above. All of the above. All of the above. The Gram Sabha constitute all the voters in the voters. village as its member. Who elect the member of Panchayat Samiti? बताओ. Panchayat When the- members in that area. By all Panchayat members in that area. Yes, first option. By all Panchayat members in that area. What is GDP? It is the value of. It is the value of in a country during a particular year. Yes, option B. In agricultural sector, which kind of unemployment is prevalent? Disguised, seasonal, hidden, All of the these. All of All of the All above. of the above. Okay. In Belgium, dash people live in dash and speaks dash language. Sir, French. 40% Wallonia is in French live in Wallonia. Wait. अब इसमें देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा. B option is the correct. In Belgium, 40% people live in Wallonia region and speaks French language. speak French. ठीक है. How सर many आपने times? बताया था F का भी F. हाँ. ठीक है. F के साथ F नहीं होगा. फिर उसके बाद how many times Belgian amended their constitution? 4 times. 4 times. The capital of European Union. 1970 and 19. Brussels, city of Brussels. Which of the following is an example of coming Yes, sir. together? United States of America, Spain, or Switzerland? Sir, both. United USA, Switzerland. United States of America and Switzerland. The Indian Both Wildlife A and Protection three. Act. Yeah, both 1 and 3. The Indian Wildlife Protection Act was implemented in the year. 1992. तो बस यही आपका फेज 1 का था, है ना. बहुत इजी क्वेश्चन था. सर आई होप. हाँ, बोलो. सर जो भारत माता की पेंटिंग है एनसीईआरटी में एक लाइन है कि द फर्स्ट इमेज वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. हाँ, फिर इमेज तो बनाना. सर इसमें फिर इसमें इमेज बनाना. अभिनेन्द्रनाथ टैगोर करेक्ट होगा कि इमेज पहली बार जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया. पेंटिंग सबसे पहली बार अभिनेन्द्रनाथ टैगोर ने की. इमेज बनाना और पेंटिंग Okay, करना sir. दोनों अलग बात है. सर ऐसे ही 2 क्वेश्चन है डीपीपी में. हाँ, तो ओके. एक वन थिंग मोर. आज जो डीपीपी आप देखोगे देयर इज अ करेक्शन इन डीपीपी. ठीक है. डीपीपी में यू विल फाइंड कि गलत डीपीपी अपलोड हो गई है बाय बैकएंड. Yes, sir, एक भी क्वेश्चन Yes, नहीं sir. था. आगे की होगी. सो ऐसा Yes, नहीं sir. है. सो व्हाट यू विल डू नाउ, तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कदा ह्यूमन एरर. तो एट बैकएंड टीम से जो है कि सेकंड डीपीपी अपलोड हो गई है. आज मैंने उसको फर्स्ट डीपीपी करवा दिया है. तो व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व द फर्स्ट डीपीपी एज वेल एज सेकंड डीपीपी, बोथ डीपीपी. ओके, जो भी आज हम लोग करेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So let me ask you some questions. Bhavya Bhatia, you had asked a question. Sir, what is the area sown more than once in an agricultural year? What we say if an area is sown more than once in an agricultural year? Hello, Bhavya Bhatia, are you there? Yes, sir. Bhavya. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. So where you got this answer? I mean, from where you hear this? Question. Sir, this question was in my UT. In your UT. So it was an objective type of question. Yes, sir. So what was the answer they had given you? Sir, I marked gross crop area, but the answer was net sown area. Answer was net sown area. Yes, sir. क्या होगा इसका आंसर भाई? Rest of the people, what you are saying? Sir, What will be- gross crop area. Sir, gross cropped area minus net sown area. इसमें प्लस नेट सोन एरिया अगर जोड़ दोगे तब जाके होगा वो ग्रॉस क्रॉप एरिया. यही होगा ना. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस क्रॉप एरिया. यही होता है ना. Yes, sir. Yes, sir. सर एक्चुअली बुक में ऐसा लिखा हुआ था
कि नेट जोन की डेफिनेशन में ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन दे रखी थी, इसीलिए शायद ऐसा कर दिया होगा। बुक में ऐसा लिखा है? सर मतलब उसमें गलत कर रखा है, नेट जोन एरिया हेडिंग दे रखी है और उसके नीचे वो ये ग्रॉस क्रॉप एरिया की डेफिनेशन दे रखी है और लास्ट में भी लिखा है इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो इसी से कंफ्यूजन आ रही है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, एकदम क्लियरली मेंशन है कि क्या हम लोग चेक कर लें एक बार? सर मेरी बुक में ऐसा था। नहीं नहीं, भव्य भाटिया जो है उनको जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हो रही है ना, एक बार आप हेडिंग थी, वो थी प्रॉब्लम। क्या? नेट जोन एरिया की हेडिंग दे रखी थी बस। नेट जोन एरिया की हेडिंग दे रखी थी आपके? हाँ, और डेफिनेशन थी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की। ओके। लेकिन लास्ट में लिखा था कि इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अच्छा, उसमें लास्ट में ये भी लिख दिया था कि इज कॉल्ड ग्रॉस क्रॉप एरिया। भव्य सर वो भव्य नहीं बोल रहा, वो हर्षित बोल रहे थे। नहीं, क्वेश्चन किसका था? भव्य का है ना, भव्य भाटिया का। यस सर, यस सर। मैं उनसे बात कर रहा हूँ इसमें। यस बुक में हेडिंग नेट जोन एरिया पर नीचे डिफाइन ग्रॉस क्रॉप एरिया की दी है। हाँ, लिखा नेट जोन एरिया है पर डेफिनेशन ग्रॉस क्रॉप एरिया का है। और जब मैंने ग्रॉस क्रॉप एरिया आप लोगों को बताया तो उसमें आपको क्या बताया था मैंने कि ग्रॉस क्रॉप एरिया मींस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया। यही तो है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। यही है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो ये प्लस साइन आपको दिख रहा है? दिख रहा है ये प्लस? यस सर। हाँ, तो नेट जोन एरिया तो अलग हो गया ना इस हिसाब से, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। फिर उसमें क्या किया? प्लस सर किया। आपने तो ये बताया था ना कि द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया माइनस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया इज कॉल्ड नेट जोन। ग्रॉस क्रॉप एरिया माइनस एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर एरिया इज इक्वल टू नेट जोन एरिया। देखो ऐसा जो ये स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है उसी के हिसाब से वो फॉर्म हुआ है ना? यस सर, आपने यही कहा था। हाँ, तो आपके टीचर ने मेरा कहा भी है। डाउट है। हाँ बोलो, रुको पहले भव्य का डाउट फेज 1 से है। वेट करो, भव्य का डाउट क्लियर होने दो पहले। भव्य, यस सर। तो आपके स्कूल में ऑप्शन में नेट जोन एरिया में पहले ये लिखा हुआ था, उसके अलावा और क्या ऑप्शन दिए थे उन्होंने आपके टीचर ने? 4 ऑप्शन थे, नेट जोन एरिया, ग्रॉस क्रॉप एरिया, और रिजर्व फॉरेस्ट और एक ऑप्शन दिया। ओके, तो आपने अपने टीचर से डिस्कस किया था इस पे? यस सर, मैंने टीचर से डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था रेफर द बुक। हाँ, यही बोला, रेफर द बुक, बस यही बोला था उन्होंने। तो मैंने आपको रेफर करके अभी दिखाया है। यस सर, पर इसके हिसाब से भी नेट जोन एरिया ये नहीं होगा। सर पर इसके हिसाब से भी नेट जोन एरिया ये नहीं होगा। इसके हिसाब से नेट जोन एरिया ये नहीं होगा, आप ये कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो एक बार आपने जब ये कहा है तो एक बार उनसे क्लैरिफाई करना और इस पे टेक अ क्लैरिफिकेशन फर्दर फॉर क्लैरिफिकेशन, है ना? कि if you are saying this then what is this meaning of this plus over here, है ना? यस सर। अगर आपकी ठीक है स्टेटमेंट सही है तो ये what is this plus over here, ठीक है? then let me know, okay भव्य, you can mail me out, आप मेल कर सकते हो। चलो, yes Utkarsh, you had another doubt? Yes sir. Sir, why is balanced resource planning necessary in country like India? Why balanced resource planning? So you want to do unbalanced pulse planning? You want to finish? You want to finish it off everything? नहीं सर, मैंने yes. सर मैंने इसमें 3 पॉइंट्स ये लिखे थे कि there are some regions which are rich in certain type of resource, other regions are self-sufficient in terms of availability of resource, and there are some regions which have acute shortage of vital resource. सर इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं। और एक सर ये भी लिख दिया मैंने कि there is enormous diversity in availability of resource in India, hence resource planning is essential at national, state, regional and local level. तो सर इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अपने आंसर लिख के आए हो आप? हाँ सर, यही लिखा है जो अभी आपको बताया।
रिसोर्स प्लानिंग आपने लिख दी उसमें, है ना? तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में आपने, ठीक है, आपने लिख दिया एक पॉइंट, बट इसके अलावा अगर आप चाहो तो कुछ एग्जांपल भी दे सकते थे, ठीक है? हाँ सर, एग्जांपल भी दिया है वो राजस्थान का, कि वहाँ पे बस सोलर ऑफ विंड एनर्जी है पर वाटर रिसोर्स की वो है। चलो अगर सुनो, बैलेंस के लिए पूछा जाए तो इसमें देखो ये भी बात आती है कि व्हाई देयर इज अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग शुड बी डन। ओके, बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि रिसोर्स आर वेरी स्कार्स, ओके, एंड वी हैव टू डू अ जुडिशियस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो आपने कहा जो अदर पॉइंट्स कि देयर आर सम रीजन वेयर a huge means resources are available in plenty, but there are some regions where resources are very scarce. For an example, in the state of Arunachal Pradesh, you will find that the water is, means there is enormous water, but it lacks in other resources. Okay, and in the state of the Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and all, here you will find irons and coal minerals. Okay, but other states lacks in minerals. So what we need a balanced approach over here so that we can distribute resource holistically throughout India. Okay? सर इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पॉइंट इंक्लूड करना होगा? Yes, और इसमें आप ऐसे लास्ट में कह सकते हो कि the overall objective of doing all this is sustainable development. We want development, but that development should be sustainable. ओके सर, है ना? तो एक बार फिर से इसको रीड करना, ठीक है? आपने जो भी लिखा है हो सकता है आधे नंबर काटने हैं। और कोई डाउट किसी का? आई हैव वन डाउट। यस सर एक पेपर में मेरे क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फीचर ऑफ इंडिया। विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फीचर ऑफ इंडिया? यस सर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्लेन्स होगा सर इसका आंसर। क्या पूछा है? वाइड स्प्रेड फीचर्स ऑफ इंडिया 43 थे सर, 43%। यस सर, विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फीचर ऑफ इंडिया। वाइड स्प्रेड फीचर ऑफ इंडिया, जो ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। यस, जब वो अगर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का है तो 43% है आपका प्लेन। यस सर। हाँ, सब प्लेन्स होगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, फीचर्स में पूछा गया, और अदरवाइज अगर आप देखो तो जो मैंने आंसर आपको बताया, एक ऐसा फीचर जो यूनिक है थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, a lot of diversity, and in that diversity you will find a unity, है ना? फिजिकल फीचर्स लिखा था या सिर्फ फीचर्स लिखा था? पहले ये बताओ। नो सर, सिर्फ फीचर्स लिखा था। प्लेन फीचर्स, फिजिकल फीचर होना चाहिए वैसे। फिजिकल फीचर लिखना चाहिए था तब प्लेन होगा ना? आपने क्या लिखा? आपने क्या लिखा था? सब प्लेन्स लिखा था, वही करेक्ट आंसर है। स्ट्रेंज, वैसे फिजिकल फीचर होना चाहिए। यस सर, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था। हाँ, अब फीचर पूछ तो पता नहीं किस फीचर की बात कर रहे हो, तो स्टेटमेंट पूरा नहीं था। तो वो चैप्टर वाइज दिया होगा ना, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में वही फीचर है, वही फीचर है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? Any other doubt apart from this? Anybody have anything to ask? Vaibhav Kathad, widespread physical features of India, it is plain. Yes, Vaibhav, you are correct. Any other question? Anybody have? No? Should I continue this chapter? Nationalism in India? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Should I ask some question if you want, or should I continue? So ask the question. Acha, Utkarsh, give me an answer. Why Gandhiji decided to include Khilafat issue in non-cooperation movement? Ma'am, sir, because Gandhiji believed that that if they want to remove the British rule from India, they need the unity of Hindu and Muslim. That's why he wanted to collaborate the Khilafat issue with the non-cooperation movement. Okay, so one of the ultimate goal of Mahatma Gandhi is to do mass education, is to put more pressure on the British government. Okay, and to maximize that pressure, he wanted to include Khilafat issue with the non-cooperation movement. Okay, so that he can, or there can be a greater pressure on the government, and government listen to the demands of the people. So one of the issue was, so that was the main issue. Okay,
Aryan Tyagi. No, I will not ask Aryan Tyagi. Okay, who will answer now? Ashmit Manak. Yes, sir. Ashmit, you tell me that what is the reason? What is the reason? What was the reason behind formation of Khilafat Committee? Sir, the reason behind the foundation of Khilafat Committee is to is Gandhi. Sir, one second. Sir, India का या फिर वैसे actual reason क्या था? Khilafat Committee in India. Okay. Okay, sir. Sir, M.K. Gandhi thought that if he rose the topic about Khilafat Committee, then the Muslims will start Muslims will start fighting for their actual for their Ottoman Empire, and if the Muslims start taking participate in the fight, they will unite, and if all the Hindus and Muslims unite with each other. Wait, Ashmit, there is something which you need to be. सर आपको which you need to बोलना know. सर उसे वर्ल्ड के बारे में बताना था. Yes. Wait. Who will answer now? Dhruv Sharma. Can I? No. Dhruv Sharma. Are you there? Anubhav Sagar. Okay. Aditya Verma. Yes, sir. Answer this question. Sir, Gandhiji wanted to unite all the Muslims together in this mass agitation movement. Wait. क्वेश्चन क्या है? खिलाफत कमेटी यहाँ क्यों बनती है? बस. So may I tell? Sir, there was also, sir, there are rumors that there is going to a harsh peace treaty Yes. on the Khalifa who was the Ottoman Emperor. बस. After the defeat in First World War. सर मेरा एक डाउट है. वेट. महक मित्तल. मनीष दास. कुछ बच्चे मीटिंग ही लेफ्ट कर दे रहे हैं. Why they are doing so? सर आज Question- बच्चे भी बहुत कम है, बस 43, 44 है. Strange. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे भाग जाते हैं. Oh, strange to hear. चलो, it is a very important chapter. Okay. और चलो, what should I do now? Okay. तो ऐसा करते हैं कि we will do a discussion afterwards. Let me see when they are returning. वैसे भी कभी भी चैलेंज हो अगर लाइफ में कोई चीज चैलेंज हो, चैलेंजिंग भरा हो, तो उससे भागना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए. सपोज यू डोंट नो द आंसर, होगा क्या? कहोगे सर नहीं मालूम है. मैं कहूँगा ओके ठीक है, कल अगली बार पढ़ के आना. तो आप ऑब्वियसली पढ़ के ही आओगे. कम से कम आंसर तो पता चल जाएगा जो क्वेश्चन मैंने पूछा था. सर एक चीज पूछनी थी. हमें के लिए आपकी आवाज कट रही है अश्मित, आपकी आवाज कट रही है. सर अब सही है? हाँ फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर M.K. गांधी जो है वो डबल साइडेड नहीं होगी अगर, क्योंकि उन्होंने कहा था जैसे हमें पीसफुली फाइट करना है क्योंकि हम ट्रुथ के रास्ते पे हैं, और दूसरी साइड उन्होंने ये भी कहा था इंडियंस को कि आपको वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स की हेल्प करनी चाहिए. इससे हमें फ्री. सर ऐसे सुनने में आता है ना कि जैसे वर्ल्ड वॉर जब 2 हुई थी तो स्पेशली M.K. गांधी ने भी बहुत ज्यादा फोर्स किया था इंडियंस को कि आपको ब्रिटिश की हेल्प करनी है. नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था. सर मैंने सुना था. सर मैंने ऐसे जगह सुना हुआ है. वर्ल्ड वॉर 2 में वो था ना कि ब्रिटिश कांग्रेस अगर ट्रूप सप्लाई करोगे तो हम चले जाएंगे. हाँ, वर्ल्ड वॉर क्रिप्स मिशन वगैरह है, आप ठीक से उसको पढ़िए. और उसमें ये प्लान था कि दे वांट टू इंक्लूड इंडियन सोल्जर्स, बट कांग्रेस वाज रिलक्टेंट और दे डिड विदाउट द कंसेंट ऑफ कांग्रेस. तो कांग्रेस ने 1942 में ही, ठीक है, गांधी जी जो आप गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, when the world war was going on, okay, they launched a movement known as Quit India movement. If this was the reason that Gandhiji wanted the Indian soldiers to participate in the First World War or Second World War, then Gandhiji might have not been launched this movement, Quit India movement. So they means he and the Congress launched the Quit India movement in 1942, 8th of August. Okay, and Mahatma Gandhi there given a slogan, do or die.
करो या मरो. Okay, so you cannot say that this is the correct statement which you have heard. You should go and read some prominent historians' book. Okay, don't hear Okay, from sir. here and there. Okay, what is the truth? You Unknown should go sources. and read. Yes, what is the truth? You should go and read the books of historians, prominent historians. Okay, here and there की बातें मत सुनो, YouTube मत देखो. These are all fake. Okay, सर so मेरा एक yes, डाउट है क्या सर है? खलीफा सर जो Wait, ऑटोमन एम्पायर का किंग था उसका नाम खलीफा था या फिर किंग को खलीफा बोलते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? सर ऑटोमन एम्पायर का नाम था खलीफा या फिर किंग को मतलब इन जनरल किंग को खलीफा बोलते हाँ, हैं? खलीफा बोलते हैं. ओके सर. Vaibhav, sir, in book there is a line that it was a rumor. So, sir, did this rumor become true? So, yes, Harris Treaty went on. Okay, Harris Treaty तो हुआ ही था. Particularly, this Harris Treaty was for Germany. आपने पढ़ा है Treaty of Versailles? पढ़ा है? 1940, 1918 Yes, First World sir. War. Harris Treaty. तो आपने देखा होगा जर्मनी के साथ जो harassment हुआ किसी के साथ नहीं हुआ. And this rumor was not true at all for Ottoman Empire because it was, as you have heard, as you have read, that the word rumor has been written over here. अगर rumor नहीं होता, so they might have written that a news was spread, okay, which was actually going on, isn't it, Vaibhav? Vaibhav. Okay, now come to the point. तो आपको सोशल में यू आर ऑन अ कंफर्टेबल जोन, आप अपने स्कूल में आंसर वगैरह कर पा रहे हो, यू आर डूइंग बेस्ट इन योर स्कूल इन सोशल पार्ट. Yes, sir. सभी बच्चे बताइए, मैं सबसे इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता. Yes, sir. Yes, sir. जो बच्चे नए हैं, पर्टिकुलरली दोज, आप लोग अब थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो सोशल में? हाँ, यस सर. कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है 9 से कंपेयर अगर करें 10th में तो सोशल में. सुभोर्शी, आरती और जो भी नए बच्चे हैं, मैं तो सबका नाम भी नहीं जान रहा हूँ. आप लोग इंटरेक्ट करेंगे तभी देखिए मैं जान पाऊंगा. वी आर नॉट इन अ क्लासरूम प्रोग्राम, सो आई ट्राई टू इंटरेक्ट टू यू ऑल, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम आई डोंट. तो आपको भी अपने एंड से थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होगा. आप मुझसे बात करनी होगी, है ना? प्रखर प्रतीक, प्रज्ञा गुप्ता, प्रिंस राजपूत, प्रियांशु पांडे, है ना? तो आप लोग भी इंटरेक्ट करते रहिए. पीयूष ठाकुर, सभी को, लता शर्मा, अविश बलियान, माही, मनीष दास, मीनू गोयल, आप सभी को समझ में आ रहा है सोशल? से इवन Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. हाँ नहीं कुछ तो बोलिए. कशिश बदोला, ईशान सिंह, वैभव अत्री, दीप्तांशु शेखर, देवेश, हर्षित, हर्षुल मित्तल. Yes. ठीक है, सोशल में सब सही है, चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम? चलिए लगातार ऐसे पढ़ते रहिएगा. सर, व्हाट इज बरदोली सत्याग्रह? विच सत्याग्रह? बरदोली सत्याग्रह इन द ईयर 1928. ठीक है, 1928 बरदोली सत्याग्रह हुआ गुजरात में. बरदोली है, महिलाओं, लेडीज ने जो है कि को हेल्प करने गए थे वल्लभ भाई पटेल, और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को टाइटल मिला था सरदार का. सो सरदार title Vallabhbhai got here in Bardoli. The women of Bardoli had given this title to Sir Vallabhbhai Patel. So from then onwards, it is said that he was known as Sardar Vallabhbhai Patel. So now we will move to our chapter now. Okay, the chapter which we were doing, nationalism in India. So nationalism in India का जो topic है, वो है आज का the different stance within the movement. यही है, I think. Yes, sir. The non-cooperation movement in different places, means in Yes. the towns and plantation. Okay. So a different stance within the movement. So the non-cooperation Khilafat movement was launched in January 1921. Okay. So nationalism in India. दिख रहा है सभी को?
यस सर। सर एक चीज पूछनी थी, अगर सर नेशनलिज्म एज अ होल क्वेश्चन आएगा कि डिस्क्राइब द नेशनलिज्म इन इंडिया, तो उसमें हमें ये प्लांटेशन और टाउन ये सब समझाना होगा, या फिर जो हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में नो पढ़ा नो था, नो, बस वही वाला? ये पूरे चैप्टर का ही नाम आपने ले लिया है ना, सो इट इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, isn't it? तो सर ऐसा आएगा नहीं ना? नहीं, they will not ask. Here you have to सर not write सॉरी an सर, नेशनलिज्म नहीं, नॉन कॉपरेशन, एक्सप्लेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। okay, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आई विल लेट यू नो, लेट मी कंप्लीट दिस नॉन कॉपरेशन, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो दिस नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो दिस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर जनवरी 1921, ओके, तो इट हैज बोथ ऑफ टू ऑब्जेक्टिव, बेसिकली यू ऑल नो, खिलाफत इशू एंड स्वराज इशू। तो स्वराज का जो मेन इशू है, स्वराज को देखा जाए तो वाज अ वेरी बिग इशू, ठीक है, जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, डिफरेंट पीपल हैड डिफरेंट मीनिंग ऑफ दिस स्वराज, ओके, डिफरेंट क्या था मीनिंग, सॉरी, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, अब उसको डिफरेंट को पूरा लिख लेना, आई डोंट हैव स्पेस टू राइट ओवर देयर, ओके, कम्युनिटी ऑफ पीपल, ऐसे। तो अब स्वराज एज द नेम सजेस्ट कि खुद खुद का है, स्वराज मतलब खुद का है, तो यू विल फाइंड स्वराज को 4 तरीके से बताया गया है, हालांकि है 3 बट 4 मैं दिखा रहा हूँ। एक टाउन में देखोगे, फिर आप कंट्री साइड में देखोगे, कौन सा साइड, कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब जानते हो ना, गांव, रूरल एरिया, तो कंट्री साइड में 2 हैं, ओके, अवध एंड केस ऑफ और एंड गुडन हिल्स। आप चाहो तो इसको सिंगल लाइन ही बनाओ, रिमूव दिस लाइन, सही होगा बोल्ड और ज्यादा, कंट्री साइड लिखा है। फिर उसके बाद गुडन हिल्स और हो गया, फिर नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन वर्कर, वर्कर सर स्पेसिफिकली इन असम। इन असम, असम में ही है प्लांटेशन वर्कर। तो अब ये कंट्री, ये स्वराज का नोशन आप देखोगे कि अलग अलग जगहों पे फिर अलग अलग तरीके से क्या हुआ, इंटरप्रीट हुआ व्हेन दिस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। तो टाउन में स्पेसिफिकली अगर आप देखें, सो पीपल मींस द नेशनलिस्ट अपील्ड दैट वी हैव टू बॉयकॉट all the institution made by the Britishers. Okay, we have to boycott all the clothes, all the goods of the Britishers. Okay, the ultimate pressure we can create on government is by boycotting different products or different goods of them. Okay, तो पहला गुड्स है, उस गुड्स उनके क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो, उनके इंस्टीट्यूशन बॉयकॉट कर दो, शॉप, लिक्वर शॉप पिकेटेड, घेराबंदी लगा दो, कोई ना जाए। तो इस तरीके से आप उनके ऊपर प्रेशर बना सकते हो, एंड इट हैपेंड ऑल्सो। लोगों ने क्या किया कि स्कूल कॉलेजेस से रिजाइन करना शुरू किया, टीचर्स ने रिजाइन शुरू किया, बच्चे पढ़ने नहीं गए, लॉयर्स लॉ प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स को एक्चुअली इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है जब लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। एज इन हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ऑलरेडी सेड दैट ब्रिटिशर्स आर हियर ड्यू टू द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, अदरवाइज ब्रिटिशर्स वुड हैव बीन गॉन विद इन ईयर। ठीक है, तो ऐसा कहा भी था। तो कोऑपरेशन इसीलिए, ठीक है, स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन, दैट वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, विद ब्रिटिशर्स। तो अब इसमें क्या हुआ कि ठीक है, ऐसा इन्होंने किया, इवन जो प्रोविंशियल काउंसिल्स इलेक्शंस थे, ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस थे, उसको भी बॉयकॉट किया। तो काउंसिल इलेक्शन जब बॉयकॉट करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दिस एक्सेप्शन हैज बीन आस्क्ड इन एनटीएससी, याद रखिएगा। तो दिस एक्सेप्शन इज फ्रॉम मद्रास जस्टिस पार्टी, ठीक है, अ नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी, याद रखिए, लिख लीजिए कहीं पे, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, अ नॉन ब्राह्मणिकल पार्टी। जब उनसे कहा गया कि ज्वाइन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दे डिनाइड, okay, as they were from non-brahminical party, or they are from non-brahminical society community, so they don't want this provincial elections to be boycotted. Okay, they don't want to left it out. Why they don't want to left it out? Because they know that if they will go with non-cooperation movement, okay, then if suppose if suppose this Congress come into power,
Okay, then it is dominated by Hindus, and in Hindus particularly Brahmins are more dominating in nature. So what will happen कि जैसे पहले चलता था कि ब्राह्मण्स ये रूल करते थे by their words, ठीक है, by virtue they had all the kind of powers, तो फिर से वही हो जाएगा और उनके जो उनकी अपनी खुद की अपलिफ्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो due to Brahmins, due to the participation of Brahmins, they don't want to participate in this non-cooperation movement. They rather took part in this election. Okay, तो ये एक कारण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद आप देखोगे तो ड्यू टू दिस अ ह्यूज लॉस वाज सीन, ठीक है, particularly it went from means the overall revenue in the year 1921 I think approx, ठीक है, 107 crores नियरली से वो डिक्रीज होके 55 crores whatsoever, ठीक है, यहाँ तक मतलब आधे तक का उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, 102 to 57 करोड़ आई थिंक ऐसे ही कुछ है ना, तो 102 करोड़ से 57 करोड़ पे आ जाते हैं। सो दे वर वेरी एंग्जियस दैट व्हाट टू डू नाउ, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग, दे आर नॉट बाइंग आवर प्रोडक्ट्स। तो बट अब एनेक्सिस हैं तो अब होगा क्या कि ये जो पीपल हैं यहाँ पे इंडिया में, दे वर सेट टू बाई खादी, खादी के कपड़े खरीदो। अब खादी के कपड़े और मिल मेड क्लोथ्स में अंतर होता है, मिल मेड क्लोथ्स सस्ते होते हैं, ठीक है, खादी महंगा होता है, हालांकि ड्यूरेबिलिटी खादी की है, बट अब लोग क्या करेंगे, लोगों से कह दिया इंस्टीट्यूशन में मत जाओ, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे, फिर लोगों से कह दिया उनके सामान मत खरीदो, ठीक है, नहीं खरीदे हैं, आप कह रहे हो खादी भी पहनो, खादी पहनने के लिए हमें पैसे चाहिए, चलो एक आध बार खरीद लिया, पर बार बार हम खादी नहीं खरीद सकते। ओके, और जो वेल ऑफ सेक्शन है वो तो चलो मान लो सस्टेन कर पाएंगे, बट जो वर्कर हैं और जो लोअर स्टार्टअप के लोग हैं वो कैसे सस्टेन कर पाएंगे, उनको कैसे आप जो है सर्वाइव करा पाओगे, तो वो नहीं कर पाते हैं ज्यादा दिन तक। तो एक तरह से एक लिमिटेशन के तौर पे देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि जो लोग थे वो ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं कर पाए, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का। अब सपोज अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनके पास एक कोई तो इंस्टीट्यूशन हो जाना चाहिए इंडियन के पास कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाएं, टीचर पढ़ाने जाएं, डॉक्टर मेडिकल लाइन में अपना प्रोफेशन करें, तो और अदर इंस्टीट्यूशन कोई है ही नहीं ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन के अलावा, तो लोगों को मजबूरन फिर से वहीं लौटना पड़ा। नॉन कॉपरेशन बड़े इंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट करते हैं, पर देखते हैं कि अरे सर्वाइव करने के लिए अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, तो और खादी भी महंगा है, कितनी बार खादी, मतलब कितनी बार खादी सर जैसे भी इंडिया और चाइना का था कि चाइनीज मटेरियल को बॉयकॉट करेंगे। हाँ, अभी मैं ये कंप्लीट होने दो, मैं आता हूँ उसके भी। तो मैं क्या कह रहा था कि अब इसी तरीके ये प्रॉब्लम आ गई, तो एक तरीके से आप लिमिट देखिए स्वराज का कहाँ पे, टाउन में। ओके, कि लोग जो है कि ज़्यादा दिनों तक इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ नहीं रह पाए। ओके, तो अब इसके बाद ये तो स्टैंड था स्वराज का, हालांकि इनके लिए नॉन कॉपरेशन में क्यों जाना चाहते थे कि इनका अपना एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन हो, ये अपने तरीके से जो है कि चीज़ों को देखें, संभालें। ओके, तो ये इनका अपना नोशन ऑफ स्वराज था। कंट्री साइड में जब हम मूव करते हैं तो केस आता है औध का और बिडन हिल्स का। औध का केस देखते हैं, तो अवध का केस अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपके सन्यासी है बाबा रामचंद्र। कौन है सन्यासी? बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र एक जो है इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके हैं फीजी आइलैंड में। ओके, वहाँ पे काम करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सर इंडेंचर्ड मतलब बधुआ मजदूरी जो करते हैं, इंडेंचर्ड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लिए जाए जाते हैं, फिर उनको फिर वापस ला दिया जाता है। ठीक है, प्लांटेशन वगैरह से रिलेटेड जो वर्क होता है ना, अब वो काम कुछ भी हो सकता है, बट बधुआ मजदूरी जिसको कहते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आप लोग इसको पढ़ोगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, वहाँ पे भी डिस्कशन होगा। तो इंडेंचर्ड लेबरर थे। अब वहाँ फिजी से जब ये वापस आते हैं, अवध में क्या केस है? अवध में ये केस है कि यहाँ के जो तालुकदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो लोगों से एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट लेते हैं। कैसा रेंट लेते हैं? एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट। ओके, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेस उनसे लिया जाता है, रेंट लेते हैं, सेस लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे बेगार कराते हैं, BEGAR, याद रखिएगा, बेगर नहीं कह रहा हूँ मैं बेगार कह रहा हूँ। पिछली बार साल भी पढ़ा था। हाँ, ये बेगार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में एक बार आया भी है 1 मार्क्स में। तो बेगार क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराना। ठीक है, कैसा काम कराना? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बेगार कराते थे। ठीक है, तो इनकी अब जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, इनकी जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो उन्होंने क्या किया, इनके अगेंस्ट वो चले गए, दिस तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ओके,
तालुकदार लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम लोग इनसे छुटकारा हमें चाहिए। उन्होंने नाई धोबी बंद, पंचायत के हेल्प से नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज कराया कि बार्बर और वॉशरमैन भी नहीं जाएंगे इनके घर, देखते हैं कि अपना काम कैसे करते हैं। इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड ये थी कि ये जो बेगार है इसको बंद कराओ, सोशल बॉयकॉट करो ये लैंडलॉर्ड्स वगैरह का, ओके, और उसके बाद जो ये रेंट है उसको वेव ऑफ कराओ। ये सारी डिमांड थी, 3 मेन डिमांड है, ओके। तो ऐसा हो तो उसी दौरान क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको जानना, आप जानते हो कि उसको और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड बनाना है। खिलाफत इशू को तो जोड़ ही लिया है, और भी चीज़ों को उनको जोड़ना है। तो उन्होंने देखा कि द केस ऑफ अवध इज अ वेरी जेन्युइन वन एंड वी कैन इंक्लूड दिस इन आवर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट ही डिड। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एडेड दिस अवध केस इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वहाँ पे अवध किसान सभा बनाई, ओके, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू थे और आपके बाबा रामचंद्र थे और भी फ्यू अदर्स थे, ठीक है। तो आसपास के एरिया में अगर देखा जाए तो लगभग 300 से ज़्यादा उनके ब्रांचेस बन चुके थे अवध किसान सभा के, ठीक है। जब भी आप रीड करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च होता है तो क्या होता है कि लोगों ने फिर क्या किया कि बॉयकॉट वगैरह शुरू करना शुरू किया, बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ के पीजेंट्स वगैरह में इतना ज़्यादा खुन्नस था, ठीक है, अगेंस्ट दिस ब्रिटिशर्स, कि उन्होंने बाजार को लूटना शुरू किया, ठीक है, उनके इंस्टीट्यूशन में तोड़ फोड़ मचा दी, उनके घरों में तोड़ फोड़ मचाई, ओके। और ये सब किया किसके नाम पे, गांधी जी के नाम पे। तो गांधी जी नेवर सेड टू डू ऑल दिस थिंग इन अ वायलेंट वे। तो आप जानते हो गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड नॉन वायलेंस, बट यहाँ पे वायलेंस क्या होता था, इंक्रीज हो जाता है। और ये सब कुछ होता है किसके नाम पे, ओनली इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी। समझ में आ रही है बात आप सभी को? Yes, Am I sir. clear? Am I Yes, sir. clear to everyone? Yes, sir. Am I clear to each and everyone? देखो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, not I'm not asking Yes, for sir. particular person. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are clear. ठीक है, तो टाउन का केस Sir. हमने पढ़ा। यस सर सिर्फ हाउसेज और मतलब जो हाउस को लूटा गया और आग लगाया गया और ग्रेन हाउस को जो लूटा लिया गया वो भी गांधी जी के नाम पे होता था, या फिर सब कुछ सिर्फ नॉन लैंड कॉपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, और लैंड टैक्सेस? डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, ये सारा कुछ जो भी हरकतें हो रही थी सब इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, ओके। वायलेंस हो रहा था वो भी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है कि ये सब लैंड वगैरह हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे वापस, ओके, जो इन्होंने ले रखे हैं। तो सब कुछ उनके नाम पे किया जा रहा था, ओके। समझ में आई बात? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई प्रोमिनेंट फिगर है तो है कौन? महात्मा गांधी इज द प्रोमिनेंट फिगर, ओके। तो और वही उसको स्विच ऑफ, उसी को कॉल ऑफ भी महात्मा गांधी कर रहे हैं। तो आप देखोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कौन करता है? महात्मा गांधी ही करते हैं। जो लीडर है उन्हीं के नाम से होगा ना जब भी होगा, अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो, तो अब इसमें नेक्स्ट आता है गुडन हिल्स, द केस ऑफ गुडन हिल्स। तो गुडन हिल्स का केस अगर आप देखो तो गुडन हिल्स इज इन आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में आप देखो कि गुडन हिल्स अगर हम ये मान लें तो यहाँ पे क्या था, यू ऑलरेडी हैव लर्न दैट रिजर्व फॉरेस्ट, द कांसेप्ट ऑफ रिजर्व प्रोटेक्टेड विलेज फॉरेस्ट, ये सब पढ़ा है ना आपने? Yes, sir. तो Yes, आपने sir. आपको याद होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, गुंडाधुर, है ना? तो रिजर्व फॉरेस्ट वहाँ पे भी याद होगा टर्म उन्होंने कर रखा था, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो रिबेलियन ऑफ बस्तर 1910। तो यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट होने की वजह से क्या हुआ, टू एंड फ्रो मूवमेंट ट्राइबल पीपल्स का रुक गया, ओके। और आप जानते हो ट्राइबल पीपल्स का अल्टीमेटली लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है? फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स पे। तो जब ये मूवमेंट बंद हो जाता है तो अब उनके अंदर क्या होती है? गुस्सा, उनके अंदर दे गॉट रिसेंटमेंट दैट व्हाई दिस रिजर्व फॉरेस्ट वन, है ना? तो व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट? तो उन्होंने दे डिसाइडेड that we will fight for this. They will become rebellious and they will fight for this, and they will withdraw this reserve forest law. ठीक है? They will do protest हालांकि नहीं, fight से ही करेंगे। तो गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसमें एक टर्म आएगा गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी क्या है? आप सबको सर ये पढ़ा था ये भी। हाँ, सर उसमें गुरिल्ला, जंगलों में छुप छुप के मारना होता है शायद। हाँ देखो ये जंगल है,
मान लो पेड़ है, ठीक है, तो यहीं पे पीछे क्या होंगे, छिपे होंगे। जंगलों में पेड़ों में क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, जैसे ही फॉरेस्ट वाले गए, ऑफिशियल जाते हैं, निकलेंगे, मारेंगे, फिर से वापस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? निकलेंगे, मारेंगे और फिर से क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे। इसी यही होता है नक्सल वगैरह, जहाँ जाओगे ना, तो नक्सल वगैरह एरिया में यही सब होता है। जानते हो नक्सल्स को, जानते हो आप? नक्सलवादी सुना है, नक्सल होता क्या एक्चुअली पता सर नहीं है। सुना हुआ है पर याद नहीं आ रहा, बता दो। नक्सल से यही होते हैं। अब ये हालांकि माओ जेदांग और इन सबको हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे, नक्सल वगैरह इंडिया आप में भी होते समझिए। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। अंडमान में सर जो वो हुआ था, अमेरिकन को मार दिया था, वही वही है क्या? सर जो वो आप तीर से मार देते हैं। सर ये मेनली छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। सर मतलब जहाँ पे ज्यादा जंगल एरिया हो गया वहीं पे तो बस आदिवासी हो बस, गए वहीं से। हाँ बस, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हैं, इन सब जगहों पे जंगल ज़्यादा हैं, यहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। नक्सल के उपद्रव आप देखोगे यहाँ पे असम वगैरह में भी आए हैं कुछ जगह। तो ये इसी तरीके से काम होता है, ठीक है। ये आते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और लोगों को मार देते हैं। और जंगल में इसीलिए कोई भी जो है गवर्नमेंट किसी की भी हो, ठीक है, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास पूरी नॉलेज होती है इन ट्राइबल पीपल की, किस तरीके से कहाँ पे जंगलों में हमें क्या करना है। बाहर से लोग आए रहते हैं, उनको पता नहीं चल पाता है। तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ पे यही हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट लीडर आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोमिनेंट लीडर? अलूरी सीताराम राजू। अलूरी वेरी सीताराम गुड। राजू। यहाँ पे आते हैं अलूरी सीताराम राजू। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। उनके ही इज अ फोक हीरो। तो अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने क्या किया, ही सपोर्टेड महात्मा गांधी। ओके, ही सपोर्टेड महात्मा गांधी इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। खादी बियर पहनो, ये भी सपोर्ट किया। और इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को हमें हटाना है यहाँ से। ओके, इन्होंने जो है कहा कि मैं जो है करेक्ट प्रेडिक्शंस कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जो है एस्ट्रोलॉजी, करेक्ट एस्ट्रोलॉजी बता सकता हूँ, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग वगैरह को इन्होंने क्या किया, कहा कि लोग जो है बॉयकॉट करें। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी क्लेम किया दैट ही इज इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसके इनकारनेशन है गॉड के, भगवान के अवतार हैं। सर उन्होंने क्लेम किया था कि रिबेल कह रहे थे, सर बुक में रिबेल लिखा हुआ था। Yes, the incarnation of God means अब somewhere rebellious people जो उनके साथ थे, इनको मान चुके थे, अभी करेक्ट प्रेडिक्शन कर रहे थे। तो yes, somewhere the supporter has supported that you are actually a incarnation of God. तो incarnation of God जब ये कहते हैं तो लोग इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा क्या होती है, एक्सपैंड होती है थ्रू आउट द रीजन। और इससे ब्रिटिशर्स को पता लग जाता है। एंड व्हाट हैपेंड, ओके, व्हाट हैपेंड में आने से पहले एक चीज और कि there was a main similarity between अलूरी सीताराम राजू एंड महात्मा गांधी। अभी आपको मैंने बताया कि अलूरी सीताराम राजू भी महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, बट देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन अलूरी सीताराम राजू एंड महात्मा गांधी। ओके, क्या मेजर डिफरेंस है? आइडियोलॉजी की। क्या तो वो आइडियोलॉजी है? वायलेंस को सपोर्ट करता है और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। दिस इज द वेरी रीजन, ठीक है। इन्होंने कहा कि मारोगे तभी ये जाएंगे, इन्होंने कहा मारो मत। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, अलूरी सीताराम राजू एंड महात्मा गांधी। तो हुआ क्या? सर फिर उनमें और गांधी जी में क्या वो है सिमिलैरिटी, यूनिटी करने की? ऐसे डिफरेंस तो हो गया आइडियोलॉजी का, और उन दोनों में बियर सिमिलैरिटी खादी, क्या है? जैसे बियर को खादी, पहनना, गिव अप ड्रिंकिंग। खादी ओके सर। पहनना, ड्रिंकिंग गिव अप करना, यही सारी चीजें। तो ये तो हुआ कि अल्टीमेटली वो लड़ाई होती है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। तो 1924 में करीबन, यस, इनको पकड़ लिया जाता है अलूरी सीताराम राजू को, और उनको फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। सो अलूरी सीताराम राजू बिकम अ फोक हीरो फॉर दैट, ठीक है। तो अलूरी सीताराम राजू के ऊपर शॉर्ट नोट्स आप बनाओगे। यस सर, अगर वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता था और वो सरवाइव कर सकता था बुलेट शॉट, तो फिर मर कैसे गया? मतलब वो तो एस्ट्रोलॉजिकल से प्रेडिक्ट कर सकता था कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, हाँ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, बट आप ये बात को मैं बता दूं, दिस इज एक्चुअली अ स्टडी। ओके, ये एक स्टडी है जो कि कुछ चीज़ों को क्या किया जाता है, देख कर समझ कर प्रेडिक्ट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। ओके, आप पूरे भविष्य को नहीं बता सकते,
अगर आप सोचो कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए जो पूरे करेक्ट हो गया। हम्म? वो उसने बोला कि वायलेंस से जाएंगे और क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था, उसी से गए थे। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस हुआ था, उसी से गए थे? सर मोस्टली तो मुझे यही लगता है। आपको ऐसा लगता है? तो अभी आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपको कुछ और भी लगेगा, ठीक है। देखो ये बात सही है कि थोड़ा सा डराने से, थोड़ा सा लड़ाई करने से ही हुआ, बट इसमें ये बात भी आपको गौर करनी पड़ेगी कि इतने दिन का प्रेशर, ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है। और वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन का हालत देखो कि पहले वो दे वर क्रेडिटर, नाउ दे हैव बिकम अ डेब्टर। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो वर्ल्ड वॉर लड़े हैं या फिर ये जो है कि किससे, ये कॉलोनीज में फाइट करें। चलो कॉलोनीज में फाइट किया, उसके बाद देखा कि 1945 में न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हो गया। जापान को देखकर सभी की हालत खराब हो गई, वर्ल्ड वाइड सभी यस की सर। हालत खराब। सर आज भी तो हुआ था। 1945, ठीक है, यस, आज 9 तारीख है। अच्छा देखो, हम लोगों की क्लासेस भी उसी दिन हो रही हैं क्या? यस यस सर। तो ये 1945 को देखकर ही सबको जो है कि सब जो है सदमे में पहुंच गए, ये तो बहुत बड़ा डेवास्टेशन है। तो लोगों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ। आप ये बात कह सकते हो ठीक है वायलेंस हुआ इस वजह से, बट ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो को भी देखना होगा हमें, है ना। वर्ल्ड सिनेरियो को भी देखना होगा और फिर जो है कि ये कंक्लूड करना होगा। महात्मा गांधी ने उसी समय क्यों कहा क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने पूरा कैलकुलेट किया कि अभी देखो वर्ल्ड वाइड इस तरह के प्रारूप बन रहे हैं, इस तरह के जो है लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं। तो ये कैलकुलेशन था महात्मा गांधी का। वो जान गए थे कि अब लड़ाई करने की जरूरत आ गई है। अभी तक तो नहीं जरूरत थी, बट अब जरूरत आ गई है, अब लड़ाई करो, अब निकल जाओगे इसमें से। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो सारी चीजों को हम पैरामीटर्स को कंसिडर करके तब कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। अब ये बात सही है कि वायलेंस हुआ तो था, ठीक है। चलो समझ में आया पीयूष बैनर्जी? यस सर। कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो यस, नाउ हु विल रीड टुडे? आई वांट एनी न्यू स्टूडेंट टू रीड। कोई बच्चा जो अभी तक कभी नहीं पढ़ा हो, पढ़ना चाहता हो। देखो मैं सभी के नाम नहीं जानता हूँ, यू विल हैव टू से दैट। यस, व्हाट्स योर नेम? मनीष दास। मनीष दास। आपने कभी पढ़ा है इससे पहले? No, sir. ओके, यू कैन रीड। Okay. The movement in the towns. The movement started with middle. The non-cooperation Khilafat movement से शुरू। Okay. Why non-cooperation? In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared the British rule was. Yes, sir. You are going in wrong direction. यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, the non-cooperation? Oh, sir. Sorry, sir. Okay. Okay. The non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in the movement, each with its own specific aspiration, all of them responding to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. The movement in the town. The movement started with middle class participations in the cities. Thousands of students left government-controlled schools. मनीष, Okay. आप मनीष साहब सुनिए, आप अपने माइक को अपने मुंह से थोड़ा सा जो है कि क्या करिए, दूर करिए, क्योंकि एयर भी कई सारी आ रही है, थोड़ा सा नॉइजी हो जा रहा है। Okay, sir. अब थोड़ा सा माइक को दूर करो अपने माउथ से। आप अच्छा रीड कर रहे हो, बस थोड़ा सा एयर भी आ रहा है, नॉइजी हो जा रहा है, उससे वजह से। अब रीड करो मनीष, कंटिन्यू। Schools and college, headmasters and teacher resigns, and lawyers gave up their legal practices. The council election were boycotted in most provinces except Madras, where the council election were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. Wait. So underline all this fact. What was the movement of Swaraj in towns? अब देखो, या तो पूछ लेंगे what the notion of Swaraj was different to different people. Justify the statement. So what you will have to write? You will have to write first towns, फिर countryside में अवध, Gadam Hills, and then the plantation. तो ये 5 नंबर में आएगा और इसमें शॉर्ट में आपको आंसर देना होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि what was the notion of Swaraj in towns? When
the question like this comes, so you will have to write the entire points. ठीक है, तो ये सारे points हैं जो आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे. These are the major points that what happened actually in terms. Okay, जस्टिस पार्टी को एकदम शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करोगे. Yes. सर इसमें लिखा है समथिंग दैट यूजुअली ब्राह्मण्स आर एक्सेस टू, तो सर वो एक्सेस पावर की बात कर रहा है. Yes. अब जेंडर रिलीजन कास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, तो देयर आई विल डिस्कस द पावर्स ऑफ ब्राह्मण्स. ठीक है, which earlier they would have, they enjoyed. ठीक है, आगे. The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shop picked, and foreign cloth burnt in huge bonfire. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Its value dropping from It's half. Okay, 1921 and 22. its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. In many places, merchant and trader refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding import clothes and wearing only Indian one, production of Indian textile mills and handlooms went up. But these movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution faced a problem for the movement to be successful. Alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British one. These were slow to come up. So students and teachers began trickling back to government school and lawyers joined back work in the government courts. Wait, is this paragraph is clear to each and everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं सभी से पूछ रहा हूँ. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I proceed further now? सर एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज खादी क्लोथ. Khadi. Okay. Can any one of you answer this? What is khadi? खादी के कपड़े आप लोगों ने देखे हैं? सर ऐसे ही चरखे से कॉटन को वीव करते थे, उसको खादी बोलते थे उस कपड़े को. क्या, किस कपड़े को? सर जो कॉटन को वो चरखे से वीव करते थे और हाँ, जो रेशे जो बनाए जाते थे सेल्फ हेल्प से, ठीक है, रेशे से धागे बनाए जाते थे, है ना, और उसी से फिर जो है कि क्लोथ की वीविंग होती थी, हाथ से ही होती थी वो भी. ठीक है, तो उसको खादी बुलाते हैं. खादी के कपड़े आपको मिल जाएंगे खादी के दिल्ली हाट वगैरह जगहों पे. सर खादी नाम से एक ब्रांड भी है, मतलब सिर्फ खादी नाम से ब्रांड है. ठीक है सर, पुलिस यूनिफॉर्म भी तो खादी कलर की होती है, तो खादी के कपड़े की होती है. खादी कपड़े बोलते थे. हाँ, खादी के कपड़े काफी ड्यूरेबल होती है, एक्सपेंसिव होती है ना? किसने पूछा था ये? सर वो हैंडमेड होती है इसलिए एक्सपेंसिव हो जाती है. हाँ, अब आप जब पढ़ोगे ग्लोबलाइजेशन तो उसमें देखोगे कि दे वर एक्सपेंसिव. हर्षित जायसवाल. हर्षित, आपको आंसर मिल गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करो. हु विल रीड नाउ? एनी अदर बॉय, एनी अदर गर्ल और स्टूडेंट और गर्ल? कौन पढ़ना चाहेगा? कोई बच्चा ऐसा जो नया हो, कभी नहीं पढ़ा हो, पढ़ना चाहता हो? रीड ही करना है. ओके सर, कैन आई? व्हाट्स योर नेम? सर, अनुभव सागर. Anubhav Sagar, yes, you can read. Sir, from rebellion in the countryside. Yeah. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war. In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. The movement here was against talukdars and landlords.
who demanded from peasants exorbitantly Underline all high, this. high rents and a variety of other cesses. Peasants सर had to सेसेस क्या होता है? Cess मतलब it is also kind of tax. Like a small tax, a small proportion of ओके सर. money. और सर exorbitantly वर्ड है. Exorbitantly मतलब हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा. peasant had to do beggar and work It's at landlords. it's not beggar, it's begar. Begar and ठीक है, work at landlords. ये देखो Farms without बेगार के बारे में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. farms without any payment. As tenant, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no rights over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, Underline. Abolition of begar. Continue. abolition of begar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by panchayats to deprive landlord of the service of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Wait, Awadh, नाई धोबी बंद भी सब लोग talking अंडरलाइन to कर लेंगे. ओके, talking नाई धोबी बंद भी. आगे. talking to the villagers, trying to understand their grievances. By Oath Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal अंडरलाइन. Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants अंडरलाइन. were attacked, bazaar were looted, and grain hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no tax be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. समझ में आया ये पैराग्राफ सभी को? सर नाई धोबी बांध क्या है? Yes, sir. नाई धोबी बंद मतलब नाई और धोबी को बंद कर देंगे, सर्विसेज बंद कर देंगे. हाँ, नाई धोबी को बंद नहीं करेंगे, नाई धोबी के सर्विसेज बंद हो जाएंगे. किसके यहाँ? लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के यहाँ. सर तो उससे नाई और धोबियों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? अरे ना मत मिले, बट वो आप इसको सोचो कि जो तालुकदार हैं, लैंडलॉर्ड है, उनका काम कौन करेगा? नहीं सर, वो नहीं कह रहा. तो वो रेबल नहीं करेंगे? कौन रेबल करेंगे? जो नाई और धोबी होंगे, क्योंकि उनके तो मेन कस्टमर वो अमीर लोग ही होंगे. अरे तो अमीर लोगों को सबक कैसे सिखाओगे? जब गरीब लोग एक साथ होंगे तभी तो. ओके सर. अगर कहोगे कि अरे हम नहीं जानते, वो भी कहेंगे हम नहीं जानते, तो ऐसे एकता नहीं बन पाएगी ना. यूनिटी बनानी है, और यूनिटी बना के अगर फाइट करोगे तभी आपके डिमांड्स को फुलफिल किया जा सकता है. जैसे सर कॉटन वीवर्स का हुआ था. हाँ, जैसे सिलेसिया में कॉटन वीवर्स का हुआ था, वो सब लड़ने हाँ. चले गए थे. तो सभी जब तक लड़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं ना. वो अमीर है, वो जो है कि चीजों को क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे अपने से. इस तरीके से होता है. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो. सर अवध और रोज सेम ही है. हाँ सेम. एनी अदर डाउट? सर जो सोर्स बी में यूनाइटेड प्रोविंसेस है वो यूपी वाला आइडिया है ना? यूनाइटेड प्रोविंस या यूपी का पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था. तो चलें कंटिन्यू, आगे रीडिंग बढ़ाई जाए. Yes, sir. Yes, sir. तो अब कौन रीड करेगा? एनी अदर स्टूडेंट हु वांट टू रीड? सर उत्कर्ष. चलो उत्कर्ष तुम ही पढ़ लो. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Gurem Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s. Not a form of
not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in the other forest regions, the colonial government has closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. Underline. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them to conclude bigas for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting. सर कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है ट्रेन की आवाज की. Yes, yes, yes. Continue. Was an interesting figure. Continue. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions. Okay, wait. If a question comes on short notes on Alluri Sitaram Raju, so you will write it from here. Okay? अगर short notes आता है, particularly on Alluri Sitaram Raju, then you will write it from here. So underline कर लो this parts of Alluri Sitaram Raju. Yes, continue your reading. And heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju, talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India should be liberated, could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Udam rebels attacked police station, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Each and everyone, सभी को समझ में आ रहा है? Yes, किसी का sir. कोई डाउट है तो पूछ लो. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. क्लियर है? तो shall I continue now? आप सभी Yes, लोग sir. इस पे Yes, नोट्स sir. बना के भेजेंगे. Yes, sir. मुझे. सभी बच्चे नोट्स बना के इसको भेजेंगे. सर पिछले क्लास की भी भेजी थी आपको. सर मैंने भी हाँ. आपको भेजा था आज. एक दो बच्चों ने भेजा है, बाकी बच्चे सॉरी सर, बाकी- वो मतलब सर वो सेंड नहीं कर पाया था. प्रीवियस क्लास वो बीच में छूट गई थी ना मेरी, इस वजह से. चलो आज भेज देना सभी लोग, ठीक है? तो Yes, sir. अब आते हैं प्लांटेशन में. स्वराज है, अब स्वराज हम किसमें देखेंगे? प्लांटेशन वर्कर्स. प्लांटेशन वर्कर्स आप जानते हो असम में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? बताओ. सर चाय, टी. Tea and coffee. यस. कर्नाटक में कर्नाटका में कॉफी. कॉफी. Sir, coffee. लिख लो, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? असम में टी. तो टी के प्लांटेशन में आप जानते हो टी एक कमर्शियल क्रॉप है. एग्रीकल्चर में पढ़ोगे तो लेबर इंटेंसिव वर्क होता है. लेबर इंटेंसिव वर्क होता है और चीप लेबर इसके लिए चाहिए होता है. तो हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स दे आर रिलक्टेंट टू डू ऑल काइंड ऑफ वर्क. तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगहों से लोगों को कैप्चर किया, बुलाया और यहाँ पे सपोज ये गार्डन है तो इसी में इनको लगा दिया, यहीं पे काम कराते थे और प्रॉक्सिमिटी में उनको रखा, ठीक है? और यहाँ पे काम कराना फिर यहीं पे रखना इनका हो गया था. इन्होंने एक एक्ट भी लाया था, इनलैंड इमिग्रेशन, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, एक्ट 1859 आई थिंक ये होगा. इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ठीक है? तो इसके तहत क्या था कि जो इनलैंड जो लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे सेटल हो गए हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, सेटलमेंट्स यहाँ पे जो काम कर रहे हैं और यहीं पे जो रह रहे हैं, वो यहाँ से बाहर वापस नहीं जाएंगे. एज पर दिस अपने से नहीं जाएंगे, उनको अपने अथॉरिटी से क्या लेना होगा? परमिशन लेना होगा. और वो परमिशन रेयरली कभी मिलता था. तो प्लांटेशन वर्कर्स ने जब ये सुना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ द गांधी राज विल कम एंड नाउ वी कैन बॉयकॉट दिस आवर अथॉरिटी एंड वी कैन गो होम. उनके लिए स्वराज क्या था कि वो अपने यहाँ इस जगह से निकल के अपने घर चले जाए, ठीक है? कहाँ चले जाए? अपने होम, ठीक है? यहाँ जाना था उनको. इनके लिए स्वराज ये था. तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, अपने अथॉरिटीज को डिफाई करते हैं और निकल लेते हैं अपने घर के लिए. बट होता क्या है, रास्ते में जो है स्ट्राइक होता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक है, स्टीमर वगैरह के और रेलवे वगैरह के स्ट्राइक हो जाते हैं.
ठीक है, तो इस स्ट्राइक की वजह से इनको पकड़ लिया जाता है वर्कर्स को, और इनको फिर पनिश किया जाता है, फिर से हिला दिया जाता है। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है इससे बाहर निकल के अपने घर को जा सके। सर तो कोई बात पहुंच ही नहीं पाता अपने घर को कभी। नहीं, तो नहीं पहुंच पाता। तो इसमें हमने चार चीजें पढ़ी, ठीक है। एक हमने पढ़ा टाउन का, उसमें हमने पढ़ा किस तरीके से लोगों ने बॉयकॉट तो किया, कॉपरेट ना करने की कोशिश की, बट अल्टीमेटली उनको करना पड़ा, फिर से ज्वाइन करना पड़ा, ठीक है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को और उनके कपड़ों को यूज करना पड़ा। फिर हमने अवध का केस पढ़ा, तो अवध के केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से दे ट्राई टू डू एंड दे मींस दे कमेंस वायलेंस आल्सो, उन्होंने वायलेंस भी किया, एंड ऑल वाज डन इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, व्हिच महात्मा गांधी नेवर सपोर्टेड। ओके, फिर थर्ड हमने पढ़ा गुडेन हिल्स। गुडेन हिल्स में भी सेम काइंड ऑफ थिंग, वायलेंस एरप्टेड। ओके, तो और फिर उनके लिए गुडेन हिल्स में क्या था, वो गुडेन हिल्स में अगर ट्राइबल पीपल से पूछो तो ट्राइबल पीपल के लिए ये था कि भाई वो अपने रिजर्व फॉरेस्ट में चले जाएं, उनका जो फॉरेस्ट एरिया है वहां चले जाएं, जैसे रहते थे वो वैसे रहे। अवध वाले केस में वो चाहते थे ये बेगार वगैरह बंद हो जाए, ये लैंड रेवेन्यू जो इतना ज्यादा लिया जाता है वो खत्म हो जाए, ये सब उनका था स्वराज का नोशन। और आप चौथे देखो प्लांटेशन वर्कर का, तो ये था कि वे अपने घर चले जाएं। तो इन सभी का ये अपना अपना स्वराज था, ऐसा नहीं है कि सबका स्वराज एक है कि हमें भारत से ये निकल जाए, ये स्वराज नहीं था इन लोगों का, इन लोगों का अपना अपना स्वराज था। दे हैड अ डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। ओके, तो बट अगर आप देखो जब ट्राइबल पीपल ये चैंट कर रहे हैं स्वतंत्र भारत, तो समवेयर दे आर रिलेटिंग देमसेल्फ टू द पैन इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और वो पैन इंडिया मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। When they are defined the same authority, who is the same authority over here? The Britishers are the same authority. Means if it is a town, or it is a case of Awadh, or it is in Goodham Hills, or it is a plantation workers, वहाँ पे अगर आप देखो तो they had a very common enemy, और वो common enemy कौन है, the Britishers। तो वो लोग किसको डिफाई कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को। क्या कह रहे हैं उनके सामने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी राज एंड ऑल, वी विल नॉट लिसन टू यू। तो अब ये अलग अलग जगहों पे जब लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया, तो ब्रिटिशर्स इसको कैसे लेके चलेंगे, they will take it as a pan India movement। समझ में आ रहा है, तो पैन PAN पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या है, मूवमेंट है। स्वतंत्र भारत अगर चैंटिंग होती है तो ये पूरे भारत की बात आती है। अब भले ही स्वराज का स्टैंड इनका अपना अलग अलग रहा हो, बट जब स्वतंत्र भारत कर दिया तो पूरे भारत को ही क्या कर दिया, स्वतंत्र करने की बात कर दी। अब जैसे कि ये वाले रीजन है, यहाँ पे पूरा इंडिया ये मान लेते हैं कि अलग अलग रीजन है, अब पूरे इंडिया में क्या चाहिए, स्वराज, ठीक है। ये कहते हैं हमें अपना स्वराज दो, ये कहते हैं हमें हम अपना दो, हमें अपना दो, हमें अपना दो, हमें अपना दो, ये पांच ही हैं, ठीक है। और सबको अगर अपना अपना मिल जाए तो क्या पूरे भारत का मिल जाएगा स्वराज? यस सर, मिल जाएगा, हो जाएगा ना? समझ में आ रही है सभी को मेरी बात? यस सर, यस सर। अब भले ही अपना अपना कर रहे हो, Yes, sir. अगर पूरा देखो मिलाकर तो इनका था स्वराज लाना है, तो पूरा अब इनका हो गया, अपना इनका भी हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया, सबका हो गया ना, तो स्वराज आ गया। समझ पा रहे हो बातों को? यस सर। एक डाउट है सर, किसी बच्चे का कोई डाउट? यस बोलो सर वो हमने जो बाबा रामचंद्र वाला केस पढ़ा अवध वाला, उसमें एक ये भी लाइन लिखी हुई है, टेनेंट हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो सर इसका लाइन का क्या मतलब? टेन्योर मतलब टेनेंट ने भाड़े पे दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि चलो 1 साल रहे होगे, ठीक है, उन्होंने किराया दे दिया, फिर कह दिया बाद में अरे हटो तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तुम जाओ, अरे मेरा पैसा तो दे दो, क्या वो भी डूब गया, जाओ, ठीक है। टेन्योर उनसे कह दिया गया एक टाइम पीरियड के लिए, उसके पहले उनको कह दिया कि जाओ, तो नो मतलब सिक्योरिटी कोई टाइम पीरियड नहीं था। हाँ, ठीक है, नो सिक्योरिटी तो ऑफ सर अगर टेन्योर, अब कभी भी अगर उनको हटा दिया। अवध वाला केस एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो उसमें ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं, ताकुलदार और लैंडलॉर्ड को छोड़ के, ये टेनेंट वाला, उसके अलावा मतलब ये भी सर। अब इसमें अब हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया नॉन कॉपरेशन। अब इसमें देखते हुआ क्या कि एक इंसिडेंस हो गया। कौन सा इंसिडेंस? चौरी चौरा, पढ़ा है आपने क्लास 8 में? यस सर। यस Yes, सर, वो sir. पुलिस वालों को पकड़ के मार देते हैं, Yes, sir. 21 पुलिस वाले मर जाते हैं। Yes, sir. 1992 यस सर। आदित्य वर्मा, आपने जब पहली बार आए थे इंस्टीट्यूट में तो आपने एक क्वेश्चन पूछा था 8 के हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था, यस सर। है ना, चौरी चौरा जिसमें पुलिस स्टेशन जला दी जाती है। यस सर। तो ये चौरी चौरा देखो आ गया फिर से 10th में, आप सभी ने पढ़ा होगा आई थिंक, सभी बच्चों ने? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो Yes, इस चौरी चौरा इंसिडेंट से क्या हो गया, वायलेंस, और गांधी जी इसके खिलाफ। तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्या है कि बंद करो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हमें क्या करना होगा, इन विलेजेस को सिखाना होगा दैट हाउ टू बी अ वेरी, हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स इन अ नॉन वायलेंट वे। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोगों ने विद इन कांग्रेस दे डिसाइडेड टू गो फॉर प्रोविंशियल इलेक्शन, दैट वी विल थ्रू प्रोविंशियल इलेक्शंस वी विल मेक अ चेंज, वी विल डू अ चेंज। ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी विल डू अ चेंज, वी विल ब्रिंग आउट अ चेंज। अब इसमें फिर फर्दर आप देखोगे एक पार्टी बनती है जिन्हें कांग्रेस 1923 में, ठीक है, स्वराज पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल एमपीएससी सीबीएसई बोर्ड, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, सीआर दास, चित्तरंजन दास इनको कहा जाता है, इनको देश बंधु का टाइटल भी दिया मिला, देश बंधु सीआर दास। तो इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई, ठीक है, और कहा कि प्रोविंशियल इलेक्शंस जो है लड़ेंगे और हम क्या करेंगे, चेंजेस लाएंगे। लॉ को अगर कोई भी लॉ है जो कि इंडियंस के फेवर में नहीं है तो उसमें उसका विरोध करेंगे, उसको पास नहीं होने देंगे। इस तरीके का इन्होंने रास्ता सोचा। फिर वहीं पे देखो कुछ रेडिकल माइंडसेट के थे, ठीक है, रेडिकल माइंडसेट में आपके जवाहरलाल नेहरू आ गए, फिर सुभाष चंद्र बोस आ गए। तो वो रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, व्हाट दे वांट अ रेडिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन। तो हुआ क्या कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सुभाष पूरा लिख देता हूँ, दे वांट अ रेडिकल सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हो जो ये टाइम पीरियड है 1923 से 1930 के बीच में, बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी में आपने पढ़ा है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जर्मनी में, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्मनी में या न्यूयॉर्क को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गई थी, यूएसए में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में कि डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई तो है पर डिमांड नहीं है। ठीक है, मतलब फूड ग्रेन्स हो रहे हैं, क्रॉप कल्टीवेट हो रहे हैं, बट उनको खरीदने वाला नहीं है, उनके दाम ड्रामेटिकली क्या हो गए, रिड्यूस हो चुके हैं। बेचना चाहते हैं, अनाज बहुत है पर खरीदने वाला कोई नहीं है, पैसा महंगे हो जाएंगे ना, लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने का। महंगे कैसे हो जाएंगे, हु टोल्ड यू दिस दैट महंगे हो जाएंगे? सर तो सस्ते नहीं हो जाएंगे अगर कोई खरीद नहीं रहा। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन है तो महंगे ही होंगे ना, क्योंकि पैसों की कमी होगी तो सब चीज महंगे महंगे मिलेंगे। पैसे की कमी होगी तो चीजें महंगे होंगी। सर जैसे वहाँ पे करेंसी ज्यादा बनानी है ना, इतनी महंगी हो गई। इंडिया में सस्ती। अच्छा सुनो सभी लोग सुनो, यहाँ पे पैसे की कमी हो गई। ठीक है, पैसे की क्या हो गई, कमी। पैसा जब नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, ये प्राइस लिख रहा हूँ मैं, मनी अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप क्या डिमांड करोगे? विल यू एबल टू डू डिमांड? नो सर, नो सर। जब आप डिमांड नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं करोगे। तो और जो सप्लाई है, जिन्होंने अनाज उगाया, जो आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप डिमांड बढ़ाओ तो अपना सामान आपको बेचें, तो उनको लॉस नहीं होगा? लॉस होगा, लॉस होगा। पहले सुन लो, अभी सुन लो, होगा। जब उनको लॉस होगा तो वो लॉस होगा तो क्या करेंगे, सभी को निकालेंगे कि जाओ अपने अपने घर जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट होगी। ये सब समझाया तो हंगर हार्डशिप में समझाया नहीं था मैंने? ये सब समझाया था सर, ये आपने पीजेंट्स एंड फार्मर्स में भी समझाया था। हाँ, यूएस सिचुएशन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को मैं क्या बता रहा हूँ? सर मुझे समझ नहीं आ रहा इंडिया में क्या डाउट है। हाँ बोलो सर, जैसे अगर मान लेते हैं वेट उत्कर्ष, अश्मित कुछ पूछ रहा था। सर मुझे ये समझ नहीं आया, अगर इंडिया में मतलब ऐसे प्रॉब्लम क्यों हो गई, तो फॉरेन में हुआ, मतलब फॉरेन कंट्रीज जो इंडिया से डिमांड मांगती थी, या फिर इंडियंस की प्रॉब्लम हो गई थी कि इंडियंस के पास ही पैसा नहीं था? वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम थी। देयर वाज अ रूमर दैट इफ यू विल इन्वेस्ट योर मनी देन योर इन्वेस्टमेंट विल गो इन वेन, ठीक है, यू विल बिकम अ बैंकरप्ट। तो एक सेंटिमेंट था, डिप्रेशन, जो कि फैल गया वर्ल्ड वाइड। लोगों के पास बेचने को सामान है बट खरीदने वाले लोग ही कम हो गए। लोग अपने पैसे, जो पर्टिकुलरली बिग कंपनीज थी,
ठीक है, जो बिग कंपनीज या एमएनसी थी सभी ने अपने पैसे दबा लिए, कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, मार्केट में पैसे नहीं है। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही है, हो रही है, बट उसको खरीदने वाले कोई नहीं है। समझ में आया? ओके सर। और सर सर इसकी इसमें वजह से मेरा ये एक भी हो डाउट गया है। कि जो टी प्लांटेशन वर्कर्स थे अब वो अपने घर जा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। टाइम पीरियड, ये देखो, ये टाइम पीरियड है 1923 और 30, ठीक है, नो तो सर, वो उसके बाद इस टाइम पे ही। यस यस यस, उसके बाद तो होता ही है, धीरे धीरे सब रिलीज होते हैं, और पर्टिकुलरली इस टाइम में होता ही है, ठीक है। तो हाँ, और अदर डाउट क्या था? फर्स्ट सर जैसे अगर मान लेते हैं कंट्री में 10 लोग हैं तो 10 लोग खाना तो खाएंगे ही ना सर। तो सर अगर अगर उनके पास पैसे खत्म भी हो जाएंगे तब भी जो एग्रीकल्चरल इंपोर्ट जो करवा रहे थे पहले वो तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है फूड क्लोथिंग ये सब तो करेंगे ही, तो फिर एग्रीकल्चरल का कैसे गिरेगा? क्योंकि सर जो खाना खाना अरे है वो तो खाना ही पड़ेगा। सुनो सुनो, अब एग्रीकल्चर का कैसे कीजिएगा? एग्रीकल्चर में आपको जो मेन बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड, वो तो आप फुलफिल करोगे क्योंकि आ, वो बेसिक नीड है, ठीक है, बट वो उस हिसाब से फुलफिल नहीं होगा जिस हिसाब से फुलफिल होना चाहिए। अब जैसे आपको खरीदना है कि आपके घर में कितना फूड लिया जाएगा जो चल जाएगा, सपोज आपके घर पे मान लेते हैं 100 kg मान लेते हैं विद इन अ मंथ, ठीक है। पहले आप क्या करते थे, 200 300 400 खरीदते थे, चलेगा, पहले पता नहीं क्या फ्यूचर अनसर्टेन, यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, यू गेट, हम 100 किलो नहीं खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। अब जितना जरूरत है उतना ही खरीद रहे हैं, और कुछ लोग तो उतने भी कैपेबल नहीं है किसी तरीके से अपना जो है कि फूड ले रहे हैं और जिंदा हैं, ठीक है, कुछ वो भी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। समझ में आ रही है बात? ओके सर, ओके, आ गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर है सभी का फॉर Yes, इकोनॉमिक sir. प्रिपरेशन? Yes, sir. सर बाहर कोई कैसे बच्चा आए? जिसका कोई डाउट? अब ये बाहर कैसे आए, हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये आएंगे कैसे बाहर, ये भी आएगा वहाँ पे। चलो अब इसमें आते हैं नेक्स्ट। इकोनॉमिक डिप्रेशन है, सभी को लॉस होता है। अब 1927 में वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है टोरी गवर्नमेंट, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट? टोरी गवर्नमेंट बनती है कहाँ पे? इंग्लैंड में, ठीक है। तो टोरी गवर्नमेंट जब बनती है तो उन्होंने एक स्टैट्यूटरी बाय लॉ, स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, बाय लॉ कमीशन भेजी, जिसका नाम था तो ब्रिटेन में तो क्वीन मोनार्क थी ना? साइमन। तो ब्रिटेन में है, बट ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में मोनार्क से रूल करता है, पार्लियामेंट रहता है वहाँ पे। पार्लियामेंट है वो विद द हेल्प कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन वन वे सर सर मेजर, सर जो पहले मेजर पावर मोनार्क पे थी या कौन सी, पहले पार्लियामेंट पे थी? पहले तो उस समय देखो, पे जबकि बात कर रहे हैं अभी। पहले तो नहीं, इस समय तो आपके इलेक्शन होते थे, ठीक है, पार्लियामेंट से पावर किसके पास ज्यादा थी? हाँ, पावर सर अब यहाँ के पार्लियामेंट, बट ये मोनार्क की हेल्प लेते थे। सर टॉरी ओके सर, किसकी बनने पावर का? पार्लियामेंट के पास ज्यादा थी। टॉरी गवर्नमेंट नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनती है जिसका नाम है साइमन कमीशन, अंडर जॉन साइमन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अंडर जॉन साइमन, जॉन साइमन के अंडर में ही बनता है, ओके। तो अब ये साइमन कमीशन आता है इंडिया में इन द ईयर 1928। कब आता है? इन द ईयर 1928, ठीक है। अब व्हाट वाज द मींस व्हाई साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया? तो अल्टीमेट रीजन व्हाई साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया वाज टू लुक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, टू लुक हाउ दे working of constitution, to look out the working of constitution, constitution कैसे काम कर रहा है, and give suggestions, और अपने इसमें सजेशन दे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है अब, और आगे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें यहाँ पे और होना चाहिए। तो जब साइमन कमीशन यहाँ पे आता है तो यहाँ पे लोग गो बैक साइमन तो क्या लगाते हैं, नारा लगाते, ठीक है, ग्रीटेड विद स्लोगन दैट गो बैक साइमन। व्हाई, क्यों ऐसा करते हैं?
क्योंकि नो मेंबर्स वर इंडियन, उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, या सीधे लिख लो नो इंडियन मेंबर्स वर देयर। ठीक है, तो जब इंडियन इसमें लोग है ही नहीं, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या बताओगे, क्या समझाना चाहते हो? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। तो आप क्या समझाओगे? तो लोगों ने गो बैक साइमन का नारा लगाया, और फिर उसी समय जब ये गो बैक साइमन का नारा लगा, तो इरविन ने एक जो है एक अक्टूबर में, आई थिंक 1929, अक्टूबर 1929 में, हमें करेक्ट, अक्टूबर 1929, यस। तो वहां पे अक्टूबर 1929 में इन्होंने एक ऑफर दिया कि दैट यू विल इन फ्यूचर in unspecified time you will get a dominion status। dominion status का एक वेग ऑफर दिया, वेग मतलब खाली, dominion status मतलब that this is India, ठीक है, सपोज ये इंडिया है, रूल कर रहे हैं, ठीक है, you will rule your country by yourself but you will rule under our supervision, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ही रहोगे, ठीक है, बट आप खुद से अपना काम कर सकते हो, बट ओवरऑल मेन आपका कौन होगा? ब्रिटेन। तो ये डोमिनियन स्टेटस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो लोग कहते हैं कि दिस इज वी डोंट रिक्वायर दिस डोमिनियन स्टेटस, दिस आर द वेग थिंग्स व्हिच यू आर गिविंग अस, ठीक है, और इसमें सुभाष चंद्र खाली है, ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपना खुद का क्या करेंगे, खुद से राज करेंगे, और फिर एक 1929 में लाहौर का सेशन होता है, ठीक है, और उसमें किसका सेशन होता है? लाहौर में सेशन होता है आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रावी नदी के तट, वहां पे रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में पास होता है, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। और उन्होंने क्या किया, रावी नदी के तट पे गए और वहां पे झंडा फहराया 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को ऐसा उन्होंने किया। तो वहां पे बहुत कम गैदरिंग हुई, तो गांधी जी बहुत ज़्यादा इससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, क्यों कम गैदरिंग हो रही है, तो अब वो क्या करेंगे, गैदरिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रीडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, इज़न्ट इट? सर एक चीज पूछनी थी, ये पहले बताओ, जहां तक मैंने अभी तक बताया है वो सभी को क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर इसी में है, डोमिनेंट स्टेटस में। हाँ सर अभी रीडिंग तो होने दो, रीडिंग तो होने दो। ओके सर। मतलब कोई ठीक नहीं है कभी भी। अब आप वादा कर रहे हो कि चलो आपको ये सामान देंगे, कब बताएंगे? तो ये बताओ, इससे क्या जाहिर होगा, सच बोलो या झूठ? मतलब फिक्स नहीं है सर, झूठ ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो हु विल रीड नाउ? कौन पढ़ेगा? अश्मित मानक। ओके सर। टुवर्ड्स सिविल मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं आए होंगे, उन्हें लग रहा होगा 6:30 बजे से ही क्लास है आज की। क्यों, आप लोगों के पास मैसेज नहीं आया? सर मैसेज नहीं आया। सर मैसेज आया, सर मैसेज नहीं आया, ऐप में से आया है। सर पोर्टल पे आया था बस, मैसेज ऐसा कुछ नहीं आया। सर टाइम टेबल पे आया था। रीड कर लो इसे, स्वराज इन द प्लांटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पता नहीं कैसे छोड़ दिया। चलो कंटिन्यू। Swaraj in the plantations. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. आप लोग इसे शॉर्ट नोट सुनाएंगे?
The visions of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over. Yet, when the rivals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally related to an all Indian agitation. When they act in the name of Mahatma Gandhi or link their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. चलो क्लियर है सभी सर को ये इस सब? पैराग्राफ पे बेस कोई क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर कुछ नोट्स हाँ। बना सकते हैं? हाँ, इस पे बनाना है स्वतंत्र भारत पे, ठीक है। when tribal people chanted Gandhiji name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation, justify the state, ठीक है। तो इसमें आ सकता है। सर फिर इसका आंसर एक बार बता दो, क्योंकि मैंने कोशिश किया था पर बन नहीं पा रहा था मुझसे। स्वतंत्र भारत आपने कब कोशिश किया? अभी तो मैंने बताया ही है क्वेश्चन। सर मैं पहले ही थोड़ा सा नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा था, मैं जब बना रहा था उसको। चलिए ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका बताऊंगा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, है ना। इट इज ऑलरेडी 3:40। ओके सर। तो रीडिंग हो जाने दो। आप एक काम करना, आप मुझे लिख के मेल कर देना, ठीक है। मैं देखूंगा आपने बनाया क्या, ठीक है। उत्कर्ष कंटिन्यू। Towards civil disobedience. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass taxation and for full independence. Institutions, debate, and dissension factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. Economic depression. Wait, you are not audible, Ashmit. Agriculture prices began to fall from the 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. Set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was created with the slogan, "Go Back Simon." All parties, including the Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. In an effort to win them over, the Lord Irwin announced October 1929 a vague offer of permanent status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. The liberals and moderates, who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion, gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purn Swaraj or full independence for India. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. But celebrations attracted very little attention. So, Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life. वेट, ये सब अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। लाहौर सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट यू विल डू नाउ, आपको मैंने बताया है कि आपको बनाने हैं नोट्स। तो नोट्स में आपको क्या क्या बताया था मैंने आपको बताया टाउन्स के स्वराज को बताना है आपको, फिर आपको कंट्री साइड और किसका बताना है, गुडन हिल्स का बनाना है, फिर उसके बाद आपको प्लांटेशन जो असम में है इन पे बनाना है,
फिर नेक्स्ट वी स्टडी प्लांटेशन के बाद वी डिड दिस टोरी गवर्नमेंट साइमन कमीशन, है ना। तो साइमन कमीशन पे आप बनाओगे, फिर लाहौर सेशन पे। सो दीज आर सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू फ्रेम इट बाय योर ओन। ओके, आपको नोट्स बनाने हैं, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कह दिया अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, मेल पे भेजेंगे, देन वी विल हैव फर्दर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। डिसेंशन मतलब कि उनके मींस विरोध जाना, विरोध करना, डिसेंट, ठीक है। दैट व्हाटएवर यू विल से आई विल नॉट डू। मतलब अपोज करना। अपोज, यस, ठीक है। एनी अदर डाउट? ओके, I have a doubt. यस, बताओ। Sir, there was also one Government of India Act that was passed in 1935. यस, वो अभी बनेगा ना। अब देखो, ये साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देगा, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में सबसे कहेंगे कि सब लोग पार्टिसिपेट करिए, तो पार्टिसिपेट करेंगे और इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया जाएगा 1930, 31, 32, ओके, ताकि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस कर पाए। तो इसमें कांग्रेस जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करती है, और फाइनली इन 1931 जो है कि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जाते हैं लंदन, ओके, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट वहाँ पे बात बनती नहीं है। इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट से और इस राउंड टेबल के डिस्कशन से ही आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया है। यही पूछना चाहते थे आप? तो सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये जो साइमन कमीशन आया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। सर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया, फिर उसके बाद उसके सेकंड पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया। नहीं, गवर्नमेंट इसमें बहुत सारे लॉ। हाँ देखो, 1909 का भी है, 1919 का है, 1935 का भी है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर मुझे पॉल साइंस से कुछ पूछना था। हाँ पूछो। सर लेजिटिमेट गवर्नमेंट था, ये वर्ड मतलब क्या है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मतलब वैध, जो प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है कि फॉर्म हुआ हो, तभी उसको लेजिटिमेट कहेंगे। ओके सर, यस सर। उसमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हो, मींस ओवरऑल डेमोक्रेटिक वैल्यूज इनकॉर्पोरेटेड, तभी वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलो तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। बाय सर। Good afternoon. गुड आफ्टरनून, बाय।